40 لاکھ سے زائد دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں. ان سب طلبہ و طالبات کی 2 ماہ کی طویل تعطیلات ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 2 ماہ کو یہ طلبہ و طالبات کیسے قیمتی بنائیں؟ اس موضوع پر ہم فائز صاحب سے گفتگو کریں گے. جی فائز صاحب، کیا کریں؟ گھومیں پھریں، سو جائیں، کتاب پڑھیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. گھومنا پھرنا بھی ہو سکتا ہے، پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سی نئی چیزیں، نئی زبانیں سیکھنا یہ بھی چل سکتا ہے. نہیں دیکھو، بہت سارے طلبہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال پورا سال ہم پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. چھٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسٹ کرنا، آرام کرنا. تو اس میں بھی آپ دورہ تفسیر، دورہ نحو، دورہ صرف اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ بول ڈال دیتے ہیں بچوں پر. میں باہر ممالک میں جاتا ہوں، وہاں ایسا ہوتا ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا طلبہ طالبات کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 کام کرتے ہیں. نمبر 1، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، تیسرے ملک، گھر سے جتنا دور ہو سکتا ہے نا سیر و تفریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قوموں کو دیکھتے ہیں. دوسرا وہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جیسے دکانیں ہوتی ہیں نا مختلف، جب فیکٹری ہوتی ہے وہاں سیلس میننگ کرتے ہیں، اور اس سے اپنی نا آمدن میں اضافہ کرتے ہیں. اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بکیں لے لیتے ہیں لائبریریوں سے اور بس پڑھتے ہیں خارجی مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کس چیز کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ. ہمارے ہاں جو طالب علم تعلیم سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد نے سبق پڑھا دیا اسی کو پڑھتے رہنا، اسی کو یاد کرتے رہنا، اسی کو رٹتے رہنا. یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے. صرف یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے، یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن مطالعہ کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے، مشاہدہ کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے، دوسرے ملکوں میں جانا یہ بھی تعلیم کا حصہ ہی ہے. نئی جگہوں کی سیر کرنا، وہاں لوگوں سے ملنا، وہاں کی تہذیب تمدن کا مطالعہ کرنا یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. تو اب اصل ایشو صرف اتنا آیا ہے کہ اس سے پہلے آپ باؤنڈ تھے، یعنی آپ کو ایک خاص انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا تھا، وہاں پہ آپ ایک خاص ٹائم ٹیبل کے پابند تھے. اب 2 مہینے آپ خود سے ڈیزائن کر سکتے ہو. تو اب آپ اپنے اعتبار سے ہر شخص ڈیزائن کر سکتا ہے کہ بھائی میرے اعتبار سے کیا سب سے بہترین اس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے. جو طلبہ تو ایسے ہیں جن کے والدین ان کی مدد کے محتاج ہیں، یعنی والدین ایسے کام کرتے ہیں یا گھریلو ضروریات ایسی ہیں جن میں کھیتی باڑی وغیرہ انوالو ہے، یا ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ضروریات زندگی پہنچانا، یا لائف اسٹائل مشکل ہے، پہاڑی زندگی ہے. تو ایسی جگہوں کے جو طلبہ ہیں ان پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا دست و بازو بنیں، والدین کے ساتھ جائیں، وہاں پہ کام کریں، گھر پہ رہیں. والدین کو احساس ہو ریلیف کا کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بازو بن رہا ہے. تو ان کے لیے سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، گھر پہ رہ کر مطالعہ کریں. گھر پہ رہ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آن لائن کورسز میں داخلہ لے لیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ رہیں. اور دوسرے نے پورا سال رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، چچا چچی، ہمارے تو پورا خاندان ہے نا، تو رشتہ داروں سے ملے رشتہ داروں سے ملے. سب سے بڑی چیز جو مدرسے کے اندر، دیکھیں مدرسے میں بہت سے فائدے ہیں لیکن ایک نقصان بھی ہے. وہ نقصان یہ کہ آپ کا ماں باپ سے جو جگری دلی تعلق ہوتا ہے نا وہ بہت ویک ہو جاتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں وہ کئی سال گھروں میں نہیں جاتے. یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 2-5 سال آپ والدین سے دور رہیں اور محبت ہی کم ہو جائے. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ پورا ایک، وہ بھی تو ایک درسگاہ ہے نا پوری. ماں درسگاہ ہے کہ نہیں؟ ماں پورا مدرسہ ہے. ماں آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، جاگنے سونے کا طریقہ سکھاتی ہے، اپنا کیئر کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے. ایک ایک چیز پر بچوں کی وہ نظر رکھتی ہے اور اس پہ ٹوکتی ہے، اصلاح کرتی ہے، بتاتی ہے. تو بچے جو ہے نا ہمارے ہاں، جو بہت سارے بچے جن کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب یہ سمجھے کہ 30-35 سال تو ہم مدرسے میں ہو گئے، تو بہت سے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی اسی ٹوکنے سے دور ہو کر مدرسے میں آ کے کہ یہاں جب دل کیا سو گئے، جب دل کیا اٹھ گئے، چھٹیاں بھی ادھر گزارو. تو میں ایسے بچوں کو یہ کہوں گا کہ وہ سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جائیں. ان کا سب سے بڑا مدرسہ چھٹیوں میں ماں باپ ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ اب کیا کریں، کورسز کون سے کریں. تو اس وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے مدارس کی طرف جدید علوم کا ہے، اپنے علم کی تطبیق کا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں وہ عملاً امپلیمنٹ کہاں پہ ہوگا اس کا بھی ہے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس وقت کی جو جدید لینگویج یعنی انگلش لینگویج آنی چاہیے. عربک لینگویج ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی جو فلوئنسی ہے، زبان پہ رواں ہو جانا ہے، تکلم اس کا محادثہ آ جانا، وہ ہمارے ہاں عملاً جو ہے اس کا ماحول نہیں مل پاتا. تو 15 دن کے 20 دن کے ایسے کورسز بھی ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہوں. اچھا 15 دن میں کوئی کیا سیکھ لے گا؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت سے بچے آ کر کہتے ہیں، اب تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے مدرسوں میں یہ کورس ہو رہے ہوں، ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبے کے مدرسوں میں بھی یہ کورسز ہو رہے ہیں عربک انگلش کے. تو وہاں پہ ان کا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹریک دے دیتے ہیں. آپ نے صرف پڑھ لی ہے، نحو پڑھ لی ہے، آپ نے بنیادی قواعد جو لغت کے ہیں وہ سارے پڑھ لیے ہیں. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جملے کیسے بنانے ہیں، بولنا کیسے ہے، ماحول وہ ماحول آپ کو یہ 15 دن دے دے گا.
20 दिन दे देगा। तबलीगी जमात में भी जा इसमें कोई सकते हैं। सरफ नहव आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। जाहिर है अगर कोई कहता है कि सरफ नहव आपको पूरी पढ़ा देंगे 15-20 दिन में, तो कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना। लेकिन सरफ नहव जो पड़ी हुई है उसका रिवाइज करवा नहीं, सकते हैं। दूसरा पहले तो आपने कहा कि वालिदैन की खिदमत करें घर में, दूसरा ये दूसरा बताया है कि कि मुख्तलिफ हाँ, कोर्सेज मुख्तलिफ करें। कोर्सेज कर लें जो आपके पास करीब में अवेलेबल हैं अपनी, और इस कोर्स करने से पहले सबसे पहले अपना एनालिसिस करें कि भाई मुझे क्या चीज नहीं आती है। जो चीज आपको नहीं आती है, मसलन सरफ नहव मैं आपको बताऊं, जो कमजोरी है आपकी, जो हमारे मदरसे दीन दर्स निज़ामी का खुलासा क्या है। दर्स निज़ामी का खुलासा है कि आपको सरफ और नहव आनी चाहिए, इबारत खानी आपको आनी चाहिए। तो सरफ और नहव अगर आपको नहीं आई है 4 साल में 5 साल में, लाजमन उस पर टाइम लगाएं। आपके लिए सबसे पहला कोर्स है सरफ और नहव का। अगर सरफ नहव आ जाती है, इबारत खानी आप करते हैं क्लासों में, जैसे तलबा होते हैं जो खुद से इबारत पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर ये कि वो इंग्लिश पढ़ लें। उनके लिए फिर दूसरे कोर्सेज हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो रहे हैं जो उसको कर लें। और बहुत से तलबा जो हैं वो इनमें जो है तबलीगी जमात के साथ जाते हैं, वो भी अच्छा है कि ऐसे बच्चे जिनको घर जो की कुछ तरफ से पढ़ा होता है दावत इल्लल्लाह आगे देते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसमें सैर व तफरीह भी हो जाती है। सैर व तफरीह हो जाती है। पाकिस्तान के बहुत से नए इलाके आप देख लेते हैं, नए तहजीब तमद्दुन से शनासाई हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो दीन पढ़ा होता है ना, वो अमलन आपको अपनी जिंदगी में उतारने का मौका मिलता है। और मस्जिद का माहौल चूंकि फरिश्तों का माहौल होता है, तो उसकी वजह से बहुत से अच्छे असरात, अच्छी आदतें आप में डेवलप हो जाती हैं। नमाजों का इस्तेमाल होता है, इबादत तिलावत का इस्तेमाल होता है, जिक्र का इस्तेमाल हो जाता है। फिर नमाजों के अंदर यकसूई खुशू खुजू जो है, जितना यहाँ पे तबलीगी जमात में आता है, इतना वैसे मुशाहदे में नहीं आता। अच्छा, ये तो तीसरी बात होगी ना तबलीगी जमात की। अब चौथी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खारजी मुताला करें। मुताला किन बुक का करें, कैसे करें, उसका कोई तरीकाकार इनको पता नहीं। देखें, सबसे इसमें मुताले के अंदर हम तलबा से फिर वही बात कि सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे, अगर आप उर्दू आपकी कमजोर है, उर्दू अदब का मुताला करना चाहते हैं, तो उर्दू के जो बड़े अदीब हैं उनको आप पढ़ें। यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ लें, मुख्तार मसूद को पढ़ें, आप अबुल कलाम आज़ाद साहब को पढ़ें। 3 बड़े शायर हैं जिनको लाजमन मुताले में रखें। इकबाल पहले नंबर पे, मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं, इनके मजमूए आपके पास होने चाहिए। ज़की कैफी को भी पढ़ना चाहिए, जाहिर है। उसके बाद है वो ज़की कैफी को भी आप पढ़ें, फैज़ अहमद फैज़ को आप पढ़ें, सही है, अहमद फराज साहब को आप पढ़ें। तो ये फिर जोश मलियाबादी को भी आप पढ़ें। तो ताहिरुल क्या है, माहिरुल कादिर साहब, उनको पढ़ें। माहिरुल कादिर साहब की जो आप बीती है वो बहुत जबरदस्त है, आप उनका मुताला कीजिए। और इसके अलावा में आबीतियाँ फिर बहुत सारी हैं जिनमें उलमाए कराम, जिन जो हमारे मदारिस के तलबा इस वक्त हमारा मुखातब हैं, तो उनको तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जो हमारे 5 अकाबिर हैं ना, उनकी सवानें जरूर पढ़ लीजिए। हजरत नानोतवी की सवानें पढ़ें, हजरत गंगोही की सवानें आप पढ़ लीजिए, हजरत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की, हजरत शेखुल हिंद की। और जो सबसे यानी आम फहम और बहुत दिलचस्प है, जिसका हजरत शेखुल इस्लाम साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों जिक्र किया है, वो सबसे पहली आबीती है जो आपको आबीतियों का ज़ौक़ पैदा कर देती, वो है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आबीती। वो लाज़िमन पढ़ी होनी चाहिए, बल्कि 2-3 दफ़ा पढ़नी चाहिए आपको। फाइज़ साहब देखो 4 चीज़ें होगी ना। सबसे पहले आपने कहा वालिदैन की खिदमत करें, दूसरे नंबर पर आपने कहा कोर्सेज करें, तीसरे नंबर पर तबलीगी जमात में जाए, चौथे नंबर पर आपने कहा कि मुताला करें। क्या खान, जैसे कि आपने नाम लिया मौलाना तकी उस्मानी साहब का, मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ये भी तो कहा कि तज़किया नफ्स होना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ अकाबिर उनके खानकाहों में जाएं, 20 दिन 30 दिन 40 दिन लगाएं। ये उलमा के लिए, उलमा जो है ना, खुसूसन जो आलिम बन चुके हैं, तखस्सुस में जा रहे हैं या तखस्सुस कर रहे हैं, उनके लिए फिर जरूरी है। उससे पहले वाले भी कर सकते हैं क्योंकि अब मैच्योर तलबा बहुत से होते हैं, लेकिन खुसूसन जो दौरा हदीस में पहुंचे हैं या 20-22 साल के उलमा हैं, नौजवान हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खानकाहों में भी वक्त लगाएं, खानकाहों में जाएं, किसी बुजुर्ग के साथ ताल्लुक भी जोड़ें और वहाँ पे ज़िक्रुल्लाह सीखें, इस्लाह नफ्स पर तवज्जो दें। तो खानकाहों से जुड़ना ये भी ज़रूरी है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं जितने भी, वो तो इसी पर जोर देते थे कि इल्म जो है, एक है किताबी इल्म और एक ये है कि अमली इल्म। तो अमली इल्म जो है वो आपको यहाँ से आएगा। और अगर तबलीगी जमात भी ये काफ़ी हद तक ये काम करती है कि वहाँ पे आपको इस्लाह नफ्स से, अमाल से जुड़ जाते हैं, ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त की पाबंद हो जाती है। लेकिन यहाँ जो पीर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी आप अमलन ज़िंदगी देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, फिर आप उनको अपनी खामियां बताते हैं कि जी मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है, नमाज की फला पाबंदी में, फजर में ये इशू आ रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, तो आप उनसे वो शेयर करते हैं। तो वो फिर आपको डेडिकेटेड आपके एतबार से मशवरा देते हैं। अच्छा, ये 5 बातें होगी, आपके पास कोई और बातें भी हैं इस हवाले से, या एक आइडिया मेरे ज़हन में भी है? जी, पहले आप अपना इल्म नहीं, आप मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक राय है ज़ाती कि भाई पूरा साल आप पढ़ते रहते हैं,
क्या सुबह उठना है, फिर मुताला करना है, फिर नाश्ता करना, फिर इस सबक में जाना, फिर इसमें जाना, एक लगी बंदी रूटीन होती है। अब 20 दिन होते हैं रमजान से पहले के, और फिर रमजानुल मुबारक का महीना है, ईद के बाद फिर उन्होंने अपने अपने मदारिस में आने की तैयारी करनी होती है। ये जो 20 दिन है, ये तलबा और तालिबात घर में अपने मजे से गुजारे, जब चाहें सोएं, जब चाहें उठें, जो चाहें खाएं, इनको शुक्र पे हाथ छोड़ दें, अपने मर्जी की ये जिंदगी गुजारें। बाकी आ जाएगा रमजान, रमजान में फिर वो तिलावत और जिक्र और तरावी और ये तो सबने करना होता है, रमजान की तो रूटीन ही अलग है। ये 20 दिन का मसला है, क्यों तलबा को आप मजबूर करते हैं, आप कोर्सेज कर लें, आप खानकाहों में चले जाएं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, खाम का पूरा साल एक उन पर एक मुसल्लत होते हैं, और 20 दिन भी आप आराम से नहीं रहने देते। देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो आप कह रहे हैं ना, वो ये है कि इसका बुनियादी मफरूज़ा ये है कि आप ये समझते हैं कि जो हम सारा साल मदरसे में वक्त गुजार रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं गुजार रहे हैं, वहाँ मजा नहीं आ रहा है आपको। तो मेरा मशवरा इसमें दीनी मदारिस के तलबा को ये भी होगा कि आप जिस फील्ड में लग गए ना, उसको अपने दिन से कबूल करें। अगर आप मतलब क्या, नहीं मुझे ये बताएं, छुट्टी का मतलब क्या होता है? छुट्टी का मतलब ये होता है कि आप रेस्ट करें, आप नहीं, अब आराम करें, एक वक्फा दे दें, दिमाग पढ़ पढ़ के जो इतना वो हो गया, थक गया है, उसको आराम कर दें। नहीं, देखिए, पढ़ना, मैंने आपसे ये कहा कि पढ़ने में और एक शेड्यूल पढ़ने में फर्क है। आप कह रहे हैं सरफ पढ़ें, जरा पूरा दिन करता है। देखिए, जरा जब आपने किया था ना जिस सरफ वाले साल में, उस वक्त आपको याद थी। अब जो है ना, आप सालिसा राबिया में पहुंच गए, आपको वो चीजें दोबारा रिकॉल करनी पड़ती हैं। नहवे मीर है मसलन, तो नहवे मीर जो है आपको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आप उसको पढ़ लें थोड़ा सा। मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात है, अस्माए सितम, कब्र वगैरह वगैरह, उनकी अमली जो चीजें हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे है, इजरा कैसे होगा, वो कर लें आप, तो वो चीजें आपको दोबारा से याद हो जाती हैं। जी ठीक है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आप मतलब ये समझते हैं कि जो आप पढ़ रहे थे वो आपकी शऊरी कोशिश नहीं थी, तो फिर आपको सबसे पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आप अपने दिल से उस दर्स निज़ामी को कबूल करें, उस निज़ाम को कबूल करें। वरना आपकी ज़ात में और तालीम में कशमकशी रहेगी। आप समझेंगे यार ये मैं बंद जाता हूँ, जब मदरसे जाता हूँ, मदरसे से निकलता हूँ तो आज़ाद हो जाता हूँ। तो इस तसव्वुर से थोड़ा बाहर आना चाहिए और मुताले को जो है ना शौक पैदा करें कि भाई ये सब मेरे लिए। जी जी फाइज साहब, ये तो हमने ये प्रोग्राम तो हमने इसको किया है जो दीनी मदारिस के लाखों तलबा और तालिबात है 2 माह की तातीलात में क्या करें। आपको पता कि इस साल 2-2.5 लाख उलमा कराम फारिग हो रहे हैं, आलिम बन गए हैं, बकायदा दर्स निज़ामी खत्म कर लिया। अगला प्रोग्राम उनके लिए करेंगे तो वो क्या करें, इमामत करें, खिताबत करें, किन किन शोबों को अपनाएं। जी नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल मुनीम फाइज साहब ने आपको 5-6 बातें बताई हैं कि छुट्टियों में आप ये करें। मेरी एक ही राय है, मैं अब तक अपनी राय पर कायम हूँ कि 20 दिन है, आप बिल्कुल रेस्ट करें, सोएं, खाएं, पिएं, कुलू वशरबू हनी अकल शुरब तआम, बस ये करते रहें, ठीक है। बस की वलिन्नासी फीमा याशिक, किस तरह वलिन्नासी फीमा याशिकून मुसाहिबू। तो चाहे आप फाइज साहब की बात को ले लें, चाहे मेरी बात को ले लें, लेकिन रमजानुल मुबारक तक 20 दिन तक है। रमजानुल मुबारक में रूटीन तो फिर अलग होती है।